हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड टू फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज प्लस वन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। सेकेंड टॉपिक क्लास 2 एंड थर्ड लीवर विद एग्जाम्पल्स एंड थर्ड टॉपिक इज ईच क्लास ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी। According to principle of lever, clockwise moment is equals to anti-clockwise moment. Clockwise moment आपने पढ़ा है force into perpendicular distance. So according to this, load into load arm is equals to effort into effort arm. See the diagram. Effort arm, effort, load, point A, B, and in between fulcrum. So we can write L into FB is equals to E into AF. L divided by E is equals to FA divided by FB. FA is effort arm and FB is load arm. See the diagram. Load upon effort is replaced by mechanical advantage. As we know formula, mechanical advantage is equals to load by effort. Now we have got the formula of mechanical advantage in case of lever is equals to effort arm upon load arm. Learn and note down this formula. Example is calculate the advantage of a lever in which effort arm is 60 cm and the load arm is 4 cm. So you first collect given value. Effort arm is equals to 60 cm, load arm is equals to 4 cm. We have formula for mechanical advantage of lever is equals to effort arm upon load arm. 60 by 4 is equals to 15 and it has no unit. Now students, you try to solve this question by your own. Pause video and solve. Take copy and pen. अब सॉल्यूशन पर आते हैं. क्रोबार क्लास 1 लेवर इमेज दिमाग में याद रखना चाहिए. क्रोबार जिसका टोटल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है इज़ पिवटेड अबाउट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप. तो डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया. टिप देखिए और ये फलक्रम एफर्ट. फलक्रम से लोड के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है. टोटल 2 मीटर लेंथ है मीन्स 200 सेंटीमीटर. सो रिमेनिंग डिस्टेंस इज 190 सेंटीमीटर. फलक्रम से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस 190 सेंटीमीटर. In first question we have to calculate mechanical advantage. So first it is given, see in answer, load arm is equals to 10 centimeter, effort arm is equals to 190 centimeter. So mechanical advantage is equals to effort arm upon load arm is equals to 190 divided by 10 is equals to 19. It has no unit again I am saying. So first answer we got. फर्स्ट क्वेश्चन में लोड आर्म और एफर्ट आर्म ही कैलकुलेट करना मेन इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट था. सेकंड पार्ट क्वेश्चन को देखिए. इसमें फाइंड आउट करना है लीस्ट फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड एट द अदर एंड टू डिस्प्लेस अ लोड ऑफ 100 kgf. सो गिवन वैल्यू तो हम लोग लिख चुके हैं. अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं. एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म. सो एफर्ट इंटू एफर्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है क्योंकि लीस्ट फोर्स हमें अप्लाई करना है, दैट इज़ एफर्ट. सो एफर्ट इंटू 190 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 सेंटीमीटर. सो एफर्ट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 अपॉन 190 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर कैंसिल आउट. सो एफर्ट आंसर आ गया 5.26 kgf. दिस इज आंसर. ये 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड एग्जाम में भी आता है. नाउ क्लास सेकेंड एंड थर्ड लेवल विद एग्जाम्पल्स. आप लोग डेफिनीसन के साथ साथ 5-6 एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. अंडरलाइन किए हुए पॉइंट के पास वहाँ पे लिखा है 1 2 3 4. 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा एरो करके 1 2 3 4. क्लास 2 लेवर लोड इज इन बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम. पॉइंट नंबर 1.
Point number 2, effort arm is always longer than load arm. Third, mechanical advantage is always greater than 1. And fourth is velocity ratio also greater than 1. एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हाउ एफर्ट आर्म इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन लोड आर्म. सो डायग्राम को देखिए. जब लोड बीच में है तो लोड से फलक्रम के बीच का डिस्टेंस लोड आर्म और एफर्ट से फलक्रम के बीच का डिस्टेंस एफर्ट आर्म. तो एफर्ट तो कहीं ना कहीं साइड में ही रहेगा उसके बाद. इसका मतलब एफर्ट आर्म तो हमेशा लोड आर्म से ग्रेटर होगा. It means effort arm is greater than load arm, so its mechanical advantage greater than 1 and velocity ratio greater than 1. Okay students, note down this very important point. Examples of class 2 lever: bottle opener, nut cracker, bar to lift load, wheelbarrow, lemon crusher, paper cutter, mango cutter, door raising the weight of human body on toes are the other examples of class 2 lever. In class 3 lever, effort is in between load and fulcrum. Effort arm is always smaller than load arm. You go and see diagram of class 3 lever. So mechanical advantage is less than 1 and its velocity ratio also less than 1. So for class 3 lever, mechanical advantage and velocity ratio always less than 1. अब जब इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि तो हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं. ऐसा मशीन जिससे कोई एडवांटेज ही नहीं हुआ तो उसका यूज़ क्यों करना. तो इसका आंसर है कि हम लोगों को इससे गेन इन स्पीड मिलता है. एग्जाम्पल के लिए ब्लेड ऑफ नाइफ या सीज़र मूव करता है लॉन्गर बाई अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैन इट्स हैंडल. आप एक एग्ज़ाम्पल दिमाग में सोचिए. सीजर्स का जब आप हैंडल को मूव करते हैं तो उसका ब्लेड में मूवमेंट ज़्यादा होता है ना. ब्लेड तेज़ी से ज़्यादा मूव करेगा, देखिएगा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. सो दिस इज़ गेन इन स्पीड. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास 3 लीवर: सुगर टोंग, फायर टोंग जो रोटी बनाने वाला चिमटा, फूड ट्रेडल, नाइफ, स्पेड यूज टू लिफ्ट कोल और सॉयल, फिशिंग रॉड. नोट डाउन इन योर कॉपी एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ लेवर में एक कन्फ्यूज़न हो सकता है. रोइंग अ बोट विद हैंडल ओर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लेवर. हाउ? सी द डायग्राम. और वो हैंडल जो पकड़ा है बच्चे ने उसको ध्यान से देखिए. वो नाव पे बीच में यहाँ पे रखा है रॉड को या हैंडल को. फलक्रम वो एक्ट हो रहा है, हाथ से एफर्ट लगा रहा है, वो साइड में है और पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है तो लोड पानी हो गया. सो फलक्रम इज़ इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड. दिस शोज क्लास 1 लेवर. सिमिलर एग्जाम्पल रोइंग द बोट बाई शॉर्ट हैंडल ओर्स. सी द डायग्राम प्रॉपरली. यहाँ पे एक बच्चा बोट रेस के लिए हैंडल को ध्यान से देखिए, हाथ का यूज़ कर रहा है एफ़र्ट की तरफ, है ना. हाथ से एफ़र्ट लगा रहा है वो बीच में और किनारे पे बाएं हाथ को फलक्रम की तरह यूज़ कर रहा है. बाएं हाथ से के थ्रू मूवमेंट होगा और पानी लोड है. सो एफ़र्ट इज़ इन बिटवीन फलक्रम एंड लोड. दिस शोज क्लास 3 लेवर. Okay student, two cases of rowing a boat. One is of class 1 lever, another is of class 2 lever, class 3 lever, sorry. Next is examples of each class of lever in human body. Nodding of head. गर्दन को ऑल्टरनेटिवली अप्स एंड डाउन्स करना, इसको बोलते हैं नॉडिंग ऑफ हेड. ऊपर नीचे जैसे आप हाँ बोलते वक्त करते हो. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लेवर. से देखिए फलक्रम बीच में, एफर्ट साइड में और लोड साइड में. सेकेंड इज रेजिंग द वेट ऑफ बॉडी ऑन टो. डायग्राम को ध्यान से देखिए कि वो पैर पे एकदम कैसे खड़ा है, तो वहीं फलक्रम एक्ट हो रहा है, बीच में लोड और ऊपर की तरफ एफर्ट. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लेवर. थर्ड इज रेजिंग अ लोड केप्ट ऑन पाम या 4 आर्म एक्ट्स एज क्लास 3 लीवर. हाउ? डायग्राम देखिए, उसने हथेली पे एक वेट रखा हुआ है जो कि लोड हो गया और
एफर्ट बीच में एक्ट हो रहा है बच्चों, बीच में है ना, जहाँ पे देखोगे कि बॉडी बनता है बीच में, हाथ के एल्बो और पाम के बीच में एफर्ट है और फलक्रम साइड में है। एफर्ट इज इन बिटवीन लोड एंड फलक्रम, सो दिस इज क्लास 3 लिवर। तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम लोग पुल्ली के बारे में पढ़ेंगे, पुल्ली सिस्टम के बारे में। तब तक क्वेश्चन आंसर आप लोग करिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको अगर आप पॉइंट वाइज बना के पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पुल्ली सिस्टम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।